آپ کہیں جا رہے ہیں؟ دعا کمرے میں داخل ہوئی اور آگ کو تیار دیکھ فوراً سے پوچھنے لگی۔ اور آپ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے کام ہے تھوڑا، رات کو دیر ہو جائے گی، تم سو جانا ٹھیک ہے؟ اور آپ اسے دیکھتے ہوئے بتاتا خود پر پرفیوم چھڑکنے لگ گیا۔ اور نیچے مت جانا، کچھ چاہیے ہو ملازم یا سامنے ہی موم کا روم ہے ان سے بول دینا۔ اور آپ فوراً سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دعا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیال رکھنا اپنا۔ اور آپ اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے زیادہ دیکھنے لگ گئی، دعا کا دل کیا وہ اسے جانے سے روک لے، کیونکہ اس کے ساتھ ہونے سے وہ اب تک اتنی ہمت سے کھڑی تھی۔ اس کے جانے کا سنتے ہی دل گھبرانے لگ گیا تھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ دعا فوراً روم لاک کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا دعا، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، دعا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دعا نے خوف بھری نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ کون؟ دعا دروازے پر نظریں کی خوفزدہ سی پوچھنے لگی۔ دعا میں ہوں لیزا۔ لیزا کی آواز سنتے ہی دعا کو تھوڑا سکون ملا۔ وہ کھڑی ہو کر دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا۔ اور آنکھ کو جاتا دیکھا تو سوچا تم سے کچھ بات کر لوں۔ جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے بات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں امید کرتی ہوں ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا میں نے تمہیں۔ لیزا مسکرا کر اسے دیکھتی نارمل انداز میں کہنے لگی۔ دعا نفی میں سر ہلا گئی۔ بیٹھو۔ دعا اسے اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا کہنے لگی۔ لیزا فوراً سے بیٹھ گئی۔ تمہاری کہانی تو بالکل کسی فلم کی طرح بن گئی، ویسے جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ اتنے بڈھے انسان سے نکاح ہو رہا تھا تمہارا، دیکھو بیٹھے بیٹھے اور آگ جیسا ہینڈسم اور اتنا ویل سیٹلڈ شخص مل گیا تمہیں۔ لیزا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ دعا سر کو خم دے گئی۔ تم نے جو کچھ فیس کیا ہے نا، اتنا تو تم ڈیزرو کرتی تھی، بس میری دعا ہے تم خوش رہو ہمیشہ۔ لیزا اسے دیکھتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ دعا ہلکا سا مسکرا دی۔ ویسے جس لڑکی کی بھی اور آگ جیسے شخص سے شادی ہو وہ بہت خوش نصیب لڑکی ہوگی، اور تم بہت خوش نصیب ہو۔ لیزا اسے دیکھتی فوراً سے بولی۔ دعا نے اسے دیکھا۔ آپ اور آگ کو پسند کرتی تھی؟ دعا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال اس سے پوچھ گئی۔ لیزا نے اسے دیکھا۔ نہیں، تم نے ایسا کیوں پوچھا؟ لیزا فوراً سے نفی میں سر ہلاتی کہنے لگی۔ دعا اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو جو چیز پسند آتی ہے اس کی تعریف کرتی، بس اس لیے پوچھ لیا۔ دعا اسے اپنے پوچھنے کی وجہ بتانے لگ گئی۔ لیزا ہنس دی۔ ارے نہیں، تم بے فکر رہو، وہ تمہارا شوہر ہے، میں بس ایک فارمل بات کر رہی تھی۔ لیزا فوراً بات سنبھالتی کہنے لگی۔ دعا سر کو خم دے گئی۔ جی لیکن آپ اتنی تعریف اپنے شوہر کی کیجیے گا، دوسروں کی نہیں۔ دعا لیزا کو صاف لفظوں میں بولی۔ لیزا اسے دیکھتی رہ گئی۔ واہ بھائی، تم تو ابھی سے جالس ہونے لگی ہو۔ اوکے، اور آگ جیجو ناؤ ہیپی؟ لیزا فوراً سے اسے ہنس کر مذاق میں بات کر گئی۔ دعا کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ چلو تم نے نماز پڑھنی ہوگی اور میں نے یونیورسٹی کا کچھ کام بھی کرنا ہے، میں چلتی ہوں۔ لیزا فوراً سے اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دعا اسے جاتا دیکھنے لگی۔ لیزا کے جانے کے بعد کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی، پچھلے دنوں میں جو سب ہوا وہ سوچتی رہی، پھر وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی وضو کرنے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کے بعد کمرے میں آ کر نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا سے گفتگو کرتی رہی، پھر جائے نماز کو لپیٹ کر جگہ پر رکھ دی۔ وہ بیڈ پر آئی، آنکھوں میں نیند دور دور تک نہیں تھی۔ وہ سونے کی کوشش کرتی رہی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کتاب لے آتی ہوں اپنے کمرے سے، دعا خود سے کہتے ساتھ ہمت پیدا کیے دبے قدموں سے چلتی نیچے کی جانب بڑھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتی اس نے ڈرا سے کتاب نکالی اور پلٹی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور وجود کپ کپ آنے لگا۔ وہ تیز قدم اٹھائے کمرے سے نکلتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے آیا۔ دعا کو اپنے نیچے جانے پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف واضح تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دعا نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر اس شخص نے دروازہ پکڑ لیا اور کمرے میں گھس آیا۔ دعا کا ایک سانس آیا دوسرا گیا۔ کیا لگا تجھے؟ نکاح کر کر مجھ سے بچ گئی؟ نہیں نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ آج تیرا شوہر بھی نہیں، بہت دن ہو گئے تیرے قریب نہیں آیا۔ وہ شخص دروازہ بند کرتا اسے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتا، چہرے پر خباثی مسکراہٹ سجائے ہلکی آواز میں کہنے لگا۔ میرے قریب نہ آؤ چاہیے۔ اس سے پہلے دعا اونچی آواز میں چیختی کسی انسان نے دعا کا منہ دبوچ لیا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس کی گردن کے گلے میں موجود وحشیانہ انداز میں بٹن کھولنے لگ گیا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ وحشی درندہ بے رحم انسان اس کو اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ گلے کا بٹن کھلتے ہی اسے زور سے دیوار سے لگاتا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا اور منہ پر مزید دباؤ دے دیا۔ دعا چیختی چلاتی رہی مگر اس کی آواز کوئی نہیں سن سکا۔
इसके गले में शदीद दर्द हुआ, इसे लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। मुझे तेरे करीब आने से कोई नहीं रोक सकता, बोला था ना मैंने। वो गर्दन से मुंह निकालता इसे देखकर मुस्कुराकर कहने लगा। दुआ खौफजदा सी हो गई। दुआ दरवाजे को नॉक करता और आँख ने उसे पुकारा। दुआ खौफजदा सी दरवाजे को देखने लग गई और वो शख्स भी घबराया। इसे वैसे ही छोड़ता वो खिड़की की जानिब बढ़ गया। दुआ उसे जाता देखने लगी। वो माऊक जहन के साथ फिर दरवाजे की जानिब देखने लग गई। तभी औराक दरवाज़ा खुलकर कमरे में दाखिल हो गया। दुआ औराक उसे देखकर परेशान सा पुकारने लग गया। दुआ उसकी जानिब बढ़ती सीने से आ लगी। औराक एकदम साकित हो गया। इसकी हार्ट बीट मिस हुई। दुआ उसके सीने में मुंह छुपाए से सक रही थी। औराक होश में आया। दुआ क्या हुआ? औराक उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखते हुए परेशान सा पूछने लगा। दुआ ने रोते हुए उसे देखा। सर चकराए बेहोशी की हालत में दोबारा उसके सीने से आ लगी। औराक उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा गया और इस पर कंफर्टर डालने लग गया। दुआ वेकअप। औराक उसके गाल सहलाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर वो वैसे ही लेटी रही। औराक ने साइड टेबल से पानी का भरा हुआ गिलास उठाया और दुआ के चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। दुआ ने पलकों पर जंबिश दी और कमरे में नजर घुमाई। दुआ आर यू ओके? औराक उसके चेहरे पर हाथ रखे उसे कहने लगा। इसकी आवाज़ सुनते ही दुआ ने गर्दन उसकी जानिब मोड़ी और हल्का सा सर हिला दिया। क्या हुआ था? औराक ने फौरन इससे सवाल किया। दुआ का चेहरा एकदम फिर सफ़ेद पड़ने लग गया। वो मैंने वहाँ किसी को देखा था, मुझे ऐसा लगा कोई है, इसलिए डर गई थी। दुआ घबराते हुए झूठ बोलती कहने लगी। औराक ने एक नज़र खिड़की पर डाली, फिर दुआ की जानिब देखा जिसकी आंखों से आंसू फिर बहने लग गए। दुआ औराक इसके करीब आता उसके आंसू साफ करने लगा। दुआ इसके सीने में मुंह छुपा गई। मैंने कहा था ना, खुद को मजबूत बनाओ, इतनी सी बात पर कौन रोता है? हाँ। औराक नरमी से इसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा। दुआ इसके सीने में महफूज महसूस करती इसकी शर्ट को मज़ीद मजबूती से पकड़ गई। कभी कभी अल्फाज नहीं होते हैं कैफियत बयान करने को, बस दिल करता है कोई संभाल ले, खुद में समेट ले। वो औराक के सीने में मुंह छुपाए इसी तरह सो गई। औराक इसकी हालत और खौफजदा चेहरे को देख परेशान सा पूरी रात इस मुतालिक सोचता रहा। दुआ की ये हालत इसी वाक़े में बहुत परेशान कर रही थी। सूरज इसी वाक़ इसे वाकई बहुत परेशान कर रही थी। सूरज की शुआएं वॉल क्लॉक से टकराती हुई कमरे में आई। दुआ के चेहरे पर पड़ते ही इसकी नींद से आंख खुली। दुआ आंखें मसलती अपनी हमरा नज़र घुमा गई और आके इसके कंधे में सर रखे रोते रोते ही सो गई थी। इसके चेहरे पर एकदम शर्मिंदगी सी छाई। वो फौरन दूर हुई। रात का मंजर याद करती उसने औराक की जानिब देखा। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? दुआ इसके चेहरे पर नजरें जमाए दिल में सोचने लगी। कितनी पागल हूँ मैं, काश नीचे ना जाती तो ये सब ना होता। दुआ खुद को कोसते हुए इस पर नजरें मरकूज किए मायूसी से दिल में बोली, गुड मॉर्निंग। और आप उसे खुद को देखता पाकर मुस्कुराकर नॉर्मल अंदाज में बोला। दुआ होश में आई। कैसी है तबीयत? और आप इसका हाथ पकड़े फिक्रमंद सा पूछने लगा। दुआ से देख रही थी। बेहतर हूँ। दुआ नजरें झुकाए धीमे लहजे में हमेशा की तरह जवाब दे गई। सॉरी रात के लिए। दुआ शर्मिंदगी से नजरें इसी तरह झुकाए और आग से कहने लगी। और आग ने उसे देखा जो परेशान लग रही थी। लेकिन तुम्हारा थैंक यू। और आग उठकर बैठते हुए चेहरे पर आए दुआ के बाल कान के पीछे करता कहने लगा। दुआ उसे देखा। थैंक यू क्यों? दुआ फौरन से सवाल करने लगी। और आग के होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरी रात खूबसूरत बनाने के लिए और मेरी शर्ट गीली करने के लिए। और आग शौक लहजे में उसे बोला। दुआ पलके छपका गई। इसके गाल सुर्ख हुए। तुम्हें किसी ने बताया है क्या कि तुम शर्माते हुए और भी खूबसूरत लगती हो? और आग उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। दुआ के गालों की सुर्खी मजीद गहरी हुई और आग की मुस्कुराहट भी इसी तरह गहरी हुई। नाश्ता करने के बाद और आग अनीता मोहतरमा के कमरे में मौजूद था। तुम्हें एक मशवरा दूँ? कुछ दिन उसे इस घर से दूर ले जाओ। अनीता मोहतरमा और आग को मशवरा देते हुए कहने लगी। और आग ने इन्हें देखा। मगर कहाँ? हमारा फार्म हाउस है, यहाँ तुम ड्राइवर से एड्रेस पूछकर इसे ले जाओ और जानने की कोशिश करो ये डर क्यों है, किस लिए। क्या पता वो तुम्हें बता दे कुछ। अनीता मोहतरमा उसे देखते हुए मसले का हल बताते कहने लगी। ठीक कह रही हैं आप मॉम, मैं आज ही इसे इधर ले जाता हूँ। और आग इनकी बात से इत्तेफाक करते हुए कहने लगा। वो इस बात में सर हिला गई। आप भी चलें हमारे साथ। और आग फौरन से उन्हें बोलता अनीता मोहतरमा से कहने लगा। तुम दोनों कुछ वक्त के लिए गुजारो अकेले वक्त बुद्धू। अनीता मोहतरमा अपने बेटे को देखते हुए अफसोस से कहने लगी।
اور آگ سر کو خم دیے گیا، شکریہ کرتا کمرے سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ بس سب کچھ اچھا ہو، انیتا محترمہ اسے جاتا دیکھ کر خود سے کہنے لگی۔ مجھے تو دوحا کوئی خوش نہیں لگ رہی ہے، عارفہ محترمہ ادیبہ بیگم کے پاس بیٹھی بولی، جس پہ ادیبہ بیگم نے اسے دیکھا۔ وہ زیادہ شروع سے نہیں بولتی مگر چہرے پر اطمینان برقرار ہے۔ 2 دن سے اس کے تو مطلب اور آگ اس کے ساتھ بہت اچھا رہ رہا ہے۔ ادیبہ بیگم فوراً سے عارفہ محترمہ کو ٹوکتے ہوئے بولی، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگ گئی۔ ماں کچھ بھی کریں، یہ شادی زیادہ دیر مت چلنے دیں۔ عارفہ محترمہ اور ادیبہ بیگم کو امید بھری نظر سے دیکھتے بولی، اور آپ میری لیزا کے ساتھ جچے گا، دوحا کے ساتھ نہیں۔ عارفہ محترمہ کی دلی بات ہونٹوں پر فوراً آ گئی، جس پر ادیبہ بیگم نے اسے دیکھا۔ بول تو تم ٹھیک رہی ہو بالکل۔ ادیبہ بیگم عارفہ محترمہ کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہنے لگیں، جس پر وہ سر کو خم دے گئی۔ بے فکر رہو، اب یہ شادی زیادہ وقت نہیں چلے گی۔ ادیبہ بیگم چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے عارفہ محترمہ کو امید دلا گئی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ دوحا، اور آگ کمرے میں آتے ہی اسے پکارنے لگا۔ دوحا جو ظہر کی نماز ادا کر کے ابھی اٹھی تھی، اسے دیکھ کر، چلو میرے ساتھ، ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں، اور آگ نے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ دوحا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ شاپنگ پر؟ لیکن کیوں؟ دوحا اسے دیکھتے فوراً سے پوچھنے لگ گئی، اور آگ اس کے سوال پر بس دیکھتا رہ گیا۔ کوئی سوال نہیں، اور آگ اس کا ہاتھ تھامے اسے بولتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھا۔ اوراق لیکن دوحا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر اوراق اسے خاموش کروائے نیچے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ ادیبہ بیگم اوراق اور دوحا کو نیچے آتا دیکھ فوراً سے پوچھنے لگ گئی۔ دونوں کے قدم رک گئے۔ شاپنگ پر؟ اوراق نے مختصر سے جواب دے کر رکا نہیں، باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کیسے اس طرح بات کر لیتے ہیں دادی سے؟ دوحا اس کے ساتھ چلتی چہرے پر انتہائی معصومیت سجائے اس سے پوچھنے لگ گئی۔ اوراق نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ منہ سے؟ اسے صاف جواب دے گیا۔ دوحا شرمندگی سے سر جھٹک گئی۔ خیر چھوڑو نا تم یہ سب، اوراق اس کا موڈ آف نہ کرتے ہوئے فوراً سے کہتے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار نے گیٹ کھولا، اوراق گاڑی سٹارٹ کرتا گراج سے باہر نکال گیا۔ چند منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ ایک مال کے باہر گاڑی روک گیا۔ دوحا نے ایک نظر اس عمارت پر ڈالی اور اوراق گاڑی سے باہر نکل کر اس کی جانب بڑھا اور اسے دیکھا جو نروس سی بیٹھی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ساتھ ہوں تمہارے، اوراق جھک کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ دوحا نے ایک نظر اسے دیکھا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ دوحا اور اوراق مال کے اندر داخل ہوئے۔ وہ مال شاید پہلی دفعہ آئی تھی، جس طرح وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اوراق اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ دونوں شاپ کی جانب بڑھے۔ اوراق دوحا کے لیے ڈریسز پسند کرنے لگ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس ہیں، دوحا فوراً سے اسے روکتے کہنے لگی۔ اوراق نے اسے دیکھا۔ دیکھے ہیں میں نے کتنے ڈریسز ہیں تمہارے پاس؟ اوراق نے اسے دیکھتا تھوڑا خفگی سے کہا۔ اس کے ساتھ ایک ڈریس لگایا۔ مجھے ایسے ڈریسز نہیں پسند، گلے بند والے پسند ہیں۔ دوحا فوراً سے اوراق کے ہاتھ میں موجود ڈریس دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ اوراق نے اسے دیکھا۔ اوراق وہ ڈریس واپس رکھ گیا اور دوحا کی پسند کے مطابق ڈریس پسند کرنے لگا۔ شاپنگ کرنے کے بعد دونوں فوڈ کورٹ آ گئے۔ کیا کھاؤ گی؟ اوراق ایک ٹیبل پر بیٹھتا اسے دیکھ فوراً سے پوچھنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، گھر چلتے ہیں۔ وہ کنفیوز سی آس پاس نظر گھمائے اسے کہنے لگی۔ میں جو بھی بولتا ہوں تم انکار کرتی ہو، کیوں؟ اوراق اب چہرے پر بھرپور سنجیدگی سجائے اسے کہنے لگا۔ دوحا نے فوراً اسے دیکھا۔ نہیں پلیز غلط مت سمجھیں آپ، بس ابھی تو ناشتہ کیا ہے 10 بجے، اس لیے میں نے کہا۔ دوحا اسے سنجیدہ دے کر فوراً سے وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگی۔ چلو پھر شیک پی لیتے ہیں، اوراق مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر دوحا سر کو خم دے گئی۔ اوراق کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا۔ دوحا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اوراق نے اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ دوحا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے گھبرائے ہوئے پوچھنے لگی۔ شیک لینے جا رہا ہوں، اوراق فوراً سے اسے جواب دینے لگ گیا۔ دوحا نے ہاتھ چھوڑ دیا اور سر جھکا گیا۔ اوراق خاموشی سے شیک شاپ کی جانب بڑھ گیا۔ شیک پیتے ہوئے واپس گھر کی جانب بڑھ گئے۔ دوحا کا اوراق کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ اس کا موڈ اب بہت بہتر تھا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جب دوحا کی نظر سامنے موجود شخص پر گئی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ السلام علیکم اوراق، کیسے ہو؟ سماعت مسکراتے ہوئے اوراق کو دیکھتا اس کی جانب بڑھ کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اوراق گلے لگے اسے جواب دینے لگا۔ سماعت نے
दुहा को मुस्कुरा कर देखा जो साकित खड़ी उसे देख रही थी। मैंने सुना है तुमने दुहा से निकाह कर लिया इतना अचानक। समाद और आग से अलग होता फौरन से कहने लग गया। और आग ने एक नज़र दुहा पर डाली और मजबूती से इसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुहा होश में आई। मैंने सोचा नेक काम में देरी कैसी। और आग ने उसे फौरन से साफ लफ्ज़ों में जवाब देता मुस्कुरा कर दुहा की जानिब देखने लग गया। मुबारक हो दुहा। समाद दुहा को देखते हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए बोला। दुहा जवाबन खामोश रही। समाद आरफा मोहतरमा का बेटा था जो ज़्यादातर काम में मसरूफ़ होने के बायस अपने ऑफिस के करीब एक फ्लैट में रहता था। हफ्ते हफ्ते बाद वो घर में सबसे आकर मिल लिया करता था। चलो बाद में मुलाकात होती है। और आग उसे कहते साथ दुहा को अपने साथ लिए ऊपर की जानिब बढ़ गया। समाद इसे जाता देखने लग गया। दुहा ने मुड़कर एक नज़र उस पर डाली। डिनर के वक्त घर के तमाम अफराद मौजूद थे। शाम की फ्लाइट से वहीद साहब दुहा से मिले बगैर वापस जा चुके थे। दुहा की नज़रें नॉन स्टॉप दुहा पर समाद की नज़रें नॉन स्टॉप दुहा पर जमी हुई थी। इसकी नज़र से दुहा फौरन उठ खड़ी हुई वहाँ से चली गई और आग ने उसे जाता देखा। शायद भूख नहीं है इसे। और आग के कहते साथ एक प्लेट में खाना डालता कुर्सी खिसका कर ऊपर की जानिब बढ़ गया। इसे जाता देखने लगी। वाकई बहुत लकी है दुआ। लीजा उसे जाता देख दिल में कहती खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। और आग कमरे में दाखिल हुआ। नज़र दुआ पर गई जो बेड पर बैठी थी और आग की जानिब देखा। मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैं उठकर आ गई। दुआ इसके हाथ से डिश लेती फौरन से बोली और आग इसके सामने आकर बैठ गया। तुमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। खाना खाने के बाद वैसे भी हम दोनों ने निकलना है। और आग ने उसे देखते हुए कहता बताने लगा। दुआ ने उसे देखा। कहाँ? दुआ ने फौरन पूछा और आग खाना खाने लग गया। ये सरप्राइज़ है। और आग इसके कान के करीब लब लाए सरगोशियाना अंदाज में कहने लगा। और आग के करीब आने पर इसकी धड़कन तेज़ हुई। दोनों ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद मिलकर ही पैकिंग कर ली। और आग ने घड़ी पर नज़र डाली। 10 बज चुके थे। इस वक्त सब घर वाले अपने अपने रूम में मौजूद होते थे। मॉम से मिलकर निकलना चाहिए हमें। और आग दुआ को देखते हुए फौरन से कहता कमरे से बाहर की जानिब आता अनीता मोहतरमा के कमरे की जानिब बढ़ गया। अरे और आग और दुआ आओ। अनीता मोहतरमा इन दोनों को साथ देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आने का कहने लगी। दोनों अंदर बढ़े। मॉम मैं आपकी बहू को कुछ दिनों के लिए लेकर जा रहा हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। और आग अनीता मोहतरमा से मिलते हुए कहने लगा। दुआ भी मिली और वो चल दी। कुछ वक्त दुआ इस घर से दूर ही जाना चाहती थी इसलिए उसने औरा के साथ जाने में बेहतरी समझी। वो दोनों नीचे आए और बाहर की जानिब बढ़ गए। ड्राइवर कार पहले से निकाले हुए था और राग इससे एड्रेस समझता सर को कम देता गाड़ी में बैठ गए। घंटे का सफ़र है तो तुम अगर सोना चाहो तो सो सकती हो। और आग गाड़ी स्टार्ट करके घर से कुछ फासले पर लाए। दुआ को देखते हुए बोला जो विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। दुआ इसे जवाब देते साथ एक गहरा सांस लिए दुआ को महसूस हुआ कि जैसे वो कैद खाने से बाहर निकल आई हो। जब उसने आज समाद को घर में देखा दिल मुट्ठी में आ गया। लेकिन औराक ने इसकी ये परेशानी भी ख़त्म कर दी थी। कुछ वक्त ही सही वो सुकून में तो थी। क्या सोच रही हूँ? और आग ने एक नज़र डालता सामने से रखकर वापस नजरें की बोला नहीं कुछ नहीं। तो वह फौरन से जवाब देती सर सीट से टिका गए। तुम वाकई में बहुत कम बोलती हो यकीन आ गया है मुझे। बचपन से किसी से इतनी बात नहीं हुई शायद इस वजह से। दुआ उसे देखते जवाब देने लगी। और आग ने उसे देखा तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारा बचपन बहुत ही बुरा गुजरा है। और आग उसे देखते हुए अफसरदा सा बोला। दुआ के होठों पर उदास मुस्कुराहट नमूदार हुई। लोगों का बचपन यादगार होता है मेरा बचपन अजियत था मेरे लिए। दुआ आंखों में आई नमी को अपने अंदर उतारे उसे जवाब देती खामोश करवा गई। कुछ देर ही गुजरी थी। दुआ मज़े से सो रही थी और आग उसे देखकर मुस्कुराया। घंटे की ड्राइव के बाद और आग ने ब्रेक पर पाँव रखा और फार्म हाउस को देखा। दुआ और आग गाड़ी से उतरकर इसकी जानिब बढ़ता इसे पुकारने लगा। दुआ इसकी आवाज़ पर एकदम उठी और इसे देखा। क्या हुआ? दुआ इसे देखकर फौरन से पूछने लगी। और आग की नज़रें उस पर थीं। हम लोग पहुंच गए हैं। और आग उसे मुस्कुरा कर बताने लगा। दुआ ने फौरन अपनी दाएं जानिब नजरें की फार्म हाउस पर नज़र डाली। हम यहाँ क्यों आए हैं? दुआ गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा बंद किए उसे देखकर पूछने लगी। कुछ वक्त मेरे ख्याल से हम दोनों को एक दूसरे को देना चाहिए ताकि समझ सके। और आग इसका हाथ थाम कर उसे देखते हुए बोलता अंदर की जानिब बढ़ गया। दुआ इसे देखने लग गई और आग इस्माइल बेग इसका मुहाफिज बनकर आया था। जैसे वो परेशान या कोई मुसीबत इस पर आती थी और आग उसे बचा लेता था। वो इसका जितना भी शुक्रिया करती कम था।
दुहा और आग पर नजरें मरकूज किए इसके साथ चलती हुई अंदर आई। दोनों मिलकर फार्म हाउस देखने लग गए। दुहा अब पहले से बेहतर थी। वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कुछ खाना है तुम्हें? एक बेडरूम में दाखिल होते और आग ने दुहा को देखते हुए पूछा। दुहा ने नज़र उठाकर उसे देखा। नहीं। दुहा फौरन से उसे जवाब देने लगी, जिस पर और आग इस बात में सिर हिला गया। तुम्हें यकीनन अभी नींद नहीं आएगी क्योंकि तुम आधा रास्ता सोती हुई आई हो। और आग अपनी घड़ी उतारता उसे देखकर कहने लगा। दुहा ने उसे देखा और इस बात में सर हिला गई। तो लॉन में कुछ वक्त गुजारते हैं। और आग अब उसकी जानिब रुख करता कहने लगा। दुहा ने उसे देखा। चले। और आग इसके सामने हाथ किए इससे पूछने लगा। दुहा इसके हाथ फौरन थाम लिए और दोनों लॉन की जानिब बढ़ गए। दुहा और आग दोनों ही नंगे पैर घास पर चल रहे थे कि चांद की रोशनी लॉन को रोशन किए हुए थी। तुम्हें नंगे पैर चलना अच्छा लगता है घास पर? और आग दुहा की जानिब देखते हुए उससे पूछने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं सुकून में हूँ। दुहा भी नजरें उसकी जानिब करते हुए इसे जवाब दिया। दुहा ने भी नजरें उसकी जानिब करते हुए उसे जवाब दिया और आग मुस्कुरा दिया। दुहा ने उसकी हाइट देखी और फिर खुद को वो और आग के कंधे से थोड़ी नीचे आती थी। आज पहली दफा उसके साथ चलते हुए अपनी और उसकी हाइट देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? और आग उसे खुद को देखता पाकर फौरन से पूछने लगा। इसी सवाल पर दुहा पजल हुई और घबराते हुए नफी में सर हिलाकर शर्मिंदगी से देखने लगी। वो दोनों खामोशी से टहल रहे थे। एक गहरी खामोशी दोनों के बीच मौजूद थी। दुहा की नज़र आसमान पर गई। आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना? दुहा ने पहली बार बात का आगाज़ किया था और आग ने एक नज़र उसे देखा, जो बहुत शौक से आसमान पर नजरें मरकूज किए हुए थी। बहुत ज़्यादा। और आग उसके चेहरे को देखता कहने लगा। अपने इतने करीब से आवाज़ सुनकर दुहा अपने दाएं जानिब नजर डाली तो उसके थोड़ा करीब हुआ उसके चेहरे को तक रहा था। तुम्हें आसमान में सबसे ज्यादा क्या खूबसूरत लग रहा है? और आके उसकी गहरी नजरें झुकाए गंभीर लहजे में पूछने लगा। चांद। दुहा ने फौरन से मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिस पर और आग ने भी उसके साथ चांद की जानिब देखा। मुझे भूख लगने लग गई है अचानक। दुहा उसे देखती शर्मिंदा सी आहिस्तगी से कहती और आग को उस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। चलो देखते हैं किचन में क्या कुछ पड़ा है या नहीं। और आग उसे कहते साथ जेब में हाथ डालते हुए चलता कहने लगा। दुआ इसके हमरा चलने लगी। एक बात पूछूं आपसे? दुआ इसके साथ चलते हुए फौरन से इजाज़त लेने लगी। और आग उसे देखा। जब वो यहाँ आई थी वो इसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसे ये महसूस करके खुशी हुई और आग इसकी बात पर सर को कम दे गया। आप इतनी ही नरम मिजाज हैं? दुआ इसे देखती पूछती और आग को खुद को देखने पर मजबूर कर गई। हैरत है, लोग मुझे अक्खड़ मिजाज कहते हैं। और आग और वो दोनों चलते हुए टीवी लॉन्च में दाखिल हुए। और आग ने उसे बोला। मगर आप बहुत पुरसुकून तबीयत के शख्स लगते हैं। तो वह फौरन से उसे अपनी राय बताने लगी। मैं हर एक के लिए पुरसुकून इंसान नहीं हूँ। दुआ मैं उन लोगों के लिए पुरसुकून इंसान हूँ जो मेरे लिए बहुत ख़ास है। और आप उसे साफ लफ्ज़ों में देखते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए जवाब दे गया। दुआ ने उसे देखा। तो क्या मैं ख़ास हूँ? बिल्कुल। और आग बढ़ते बड़े इत्मीनान से उसे जवाब देता किचन में दाखिल हुआ। दुआ की हार्ट बीट मिस हुई और वो ब्लश करने लगी। तुम सिर्फ एक वर्ड पर ऐसे ब्लश करोगे तो आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आग बड़ी बेबाकी से उसे नज़रों के सार में लिए कहने लगा। दुहा पलके झपका गई। दुहा यहाँ सिर्फ अंडे ही मौजूद हैं और कुछ नहीं, इसलिए इसी से काम चला लेते। और आग फ्रिज खोलकर पूरी फ्रिज पर नज़र दौड़ाते अंडे उठाकर कहने लगा। दुहा अपनी कैफियत समझ ही नहीं पा रही थी। जब वो औराक इसकी थोड़ा करीब होती थी अपनी बातों से वो उसे मज़ीद अपने करीब कर लेता था और वो होती चली जाती थी। इसकी खुशबू नाक से टकराते ही उसकी धड़कनें बेतरतीब सी हो जाती थी। इसके बेबाक बातों पर इसकी हार्ट बीट मिस हो जाया करती थी। और आग पैन उठाकर आग जलाता उसमें तेल डालने लगा। दुआ अपनी सोचों से बाहर निकली तो नज़र और आग पर गई। मैं बना लूँगी। दुआ और आग के पास आती ही उसे देखती फ़ौरन से कहने लगी। मैं तकरीबन बना चुका हूँ। और आग 3 अंडे तोड़कर पैन में डालता उसे जवाब देने लगा। दोनों ने मिलकर फ्राई अंडे खाए। दुआ ने बर्तन धोकर वापस उनकी जगह पर रख दिए। मेरे ख्याल से अब सोना चाहिए हमें।
और दुआ किचन से बाहर निकले और आग उसे देखते हुए बोला। वो दोनों रूम में वापस आए और आग बेड पर लेट गया। दुआ उसे देखने लगी और कुछ ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो? कुशन्स नहीं है यहाँ। दुआ हाथों की उंगलियां चटकाते हुए उसे कहने लगी और आग ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा। वो बीच में रखने हैं ना, ऐसे नहीं सो सकती। दुआ, मेरा ख्याल है हमारा रिश्ता इस हद तक पहुंच चुका है कि हमें अपने बीच कुशन्स रखने की ज़रूरत नहीं है। और आग उसे देखता थोड़ा मायूस सा बोला। दुआ उसे देखने लग गई। माजी में हुए भयानक हादसात फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने आए। मुझे नहीं लगता, मुझे अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। दुआ फौरन से जवाब उसे देने लगी। और आपको इस बात से वो बेहद मायूसी हुई। वो गुस्से से सर को कम देता तकिए के लिए बाहर की जाने बढ़ गया। दुआ उदास नजरों से उसे जाता देखने लग गई। और आप, मैं आपसे मजीद सब कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। जब आपको मेरी असलियत मालूम होगी तो आप मुझे छोड़ देंगे। इस डर से मैंने कुछ नहीं बताया। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। दुआ आंखों में नमी लिए और आग की जानिब देखती उसे कहते साथ परेशान कर गई। और आप माथे पर शिकने लिए उसे देखने लगा। क्या बोल रही हो दुआ? और आप उसे परेशान सा देखता पूछने लगा। दुआ नम आंखों से उसे देख रही थी। ये सब खुद अपनी मर्जी से नहीं करती थी, ज़बरदस्ती होता था। वो मुझ पर तशद्दुद करता था। मैं बताना चाहती थी मगर वो मुझे इतना बेबस कर चुका था। चुपचाप अपने साथ ज़्यादती होने देती रही। वो इंसान नहीं, हैवान है। दुआ के अल्फाज सुनते ही और आके चेहरे पर परेशानी के बजाय सख्ती सी दर आई। उसे देखने लगा। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दुआ। और आग उसे नफरत भरी निगाहों से देखते हुए इंतहाई सख्ती से बोला। दुआ रोते हुए उसे देख रही थी। और आग